یسوع مسیح کے ابدی جلالی قدوس مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی. آپ کی بھی سلامتی ہو. خداوند خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہم خدا کی حضوری کے اندر موجود ہیں، اس کی حضوری کے اندر بلائے گئے ہیں، اس کی اندر حضوری کے اندر خدا نے ہمیں بلایا، اکٹھا کیا، اور بے شک یہ اس کی پاک مرضی ہے کہ ہم اس کے حضور کے اندر آ کر اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کی حمد کریں. اور میں عزیزو ایک بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خداوند خدا کی شکر گزاری کے طور پر، کہ میں یہاں پر محسوس کر رہا تھا کہ خدا کی جو روح القدس کی روشنی ہے، یعنی کہ اس کی موجودگی کی جو دلیری ہے وہ ہمیں مل رہی تھی، اور خدا اپنے روح کے وسیلہ سے پرزور طریقے سے یہاں پر موجود ہے. روح کے وسیلہ سے جو مشکل ہے، تو یہ بے حد خداوند کی شکر گزاری کہ وہ اپنے لوگوں کی پرستش کے وسیلہ سے ابر کے طور پر اپنے لوگوں کے درمیان اتر اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. تو بے شک ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا روح موجود ہے، اور آج ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کلام اقدس میں سے جو بھی خدا کا روح بہتر اور مناسب طور پر ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم کلام اقدس میں سے ایمانداری کے ساتھ، غور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سیکھیں گے. آمین. کلام اقدس میں سے ہم ایک بڑی زبردست بات کو سیکھنے جا رہے ہیں، جو ہم پہلے بھی اس کو بہت دفعہ سن چکے ہیں. اس حصہ کو، اس کلام کو پہلے ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، پڑھا بھی ہے، اور بہت دفعہ اس کی باتوں کو سنا ہوا ہے. یہ حکم الہی ہے. اور متی کی انجیل کے 28ویں اور آخری باب کی 19ویں آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، باب اور 19 آیت، یہاں پر کلام اقدس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے 18 سے، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، کلام اقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور کھولے جانے پر خدا کی برکت ہے. آمین. میرے عزیزو، یہاں پر سودے آسمانی سے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ پہاڑی کے اوپر موجود ہیں، جب یسوع مسیح آسمان پر روانہ ہوتے ہیں، تو جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ تاکید کرتے ہیں، یہ حکم جاری کرتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اب تم کیا کرو، پس تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر منادی کرو، جا کر انجیل سناؤ، جا کر انجیل مقدس کو لوگوں کے اندر سنا کر ان کی زندگیوں کو کلام کی خوشخبری سناؤ. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ حکم الہی ان کے سپرد کیا. بعض دفعہ جب کبھی ہم ایک ذمہ داری کسی کے سپرد لگاتے ہیں اور اس ذمہ داری کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، تو پھر ہم جب کہتے ہیں کہ اب سے یہ ذمہ داری تیرے ہاتھ میں ہے، اب سے اس کی سپرداری تیرے ہاتھوں میں ہے، تو اس سپرداری کو جب ہمارے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، تو پھر جس شخص نے وہ ذمہ داری دی ہوتی ہے، جس شخص نے وہ ذمہ داری عطا کی ہوتی ہے، ہم پر وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی کہی ہوئی بات پر، اس کی کہی ہوئی نصیحت پر، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے پوری دیانتداری سے، پوری ایمانداری سے اس بات کو لے کر اس کے عہد کیے ہوئے بات پر چلتے رہیں، قائم رہیں، اس کو پورا کرتے رہیں. اور میرے عزیزو، یہاں پر انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کی ہے، تلقین کی ہے کہ تم جاؤ اور انجیل مقدس کی بشارت دو۔ اس سے پہلے اگر ہم کلام اقدس پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے باپ کی نصیحت پر، اپنے باپ کے کہنے پر، اپنے باپ کے حکم پر وہ بھی چل پڑا، وہ بھی نکلا، وہ بھی گیا، آسمان کے تخت کو چھوڑ دیا، آسمان کے تخت نشین کو چھوڑ دیا، اپنی بادشاہی کو، اپنی رتبے کو، اپنے مقام کو چھوڑا اور باپ کی نصیحت عمل کرتے ہوئے آیا اور دنیا کے اندر آ کر انجیل مقدس کی منادی کی۔ اب وہی بات یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ہم خدمت لوگوں سے کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور انجیل مقدس کی منادی کرو۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے انہیں بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ۔ یسوع مسیح نے ہدایت کی ہے ان کو کہ تم ان سب باتوں کی پیروی کرو میں نے جن کا تم کو حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جاؤ تو اس کی بڑی اور ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو جو ہمارے آرام کے لیے تھی، ان باتوں کو جو ہماری عیش و عشرت کے لیے تھی، ان چیزوں کو جو ہمیں فائدہ دے رہی تھی، ان چیزوں کو جن کی وجہ سے ہم سکھ پا رہے تھے، ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کو جن کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے تھے، آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے، سکون سے چل رہے تھے، خوشی ہنسی چل رہے تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا۔ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف کر کے ان چیزوں کو ٹھکرانے کے بعد ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنا پڑا۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم جاؤ، تم نکلو، انجیل مقدس کی منادی کے لیے جاؤ۔ تو اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو جو ہمارے آرام کے لیے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ایک طرف کرنا کرے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر سے لوکا کی انجیل کو دیکھیں تو نامے باب کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ بات چیت ہوئی ہے، یہاں پر نامے باب کے اندر بڑی لمبی چوڑی یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو، متی کو دیکھ لیں، متی کیا کر رہا ہے؟ مسول چنگی پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹیکس کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ وہ لوگوں سے ٹیکس کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اسی رستے میں سے گزر رہے ہیں اور یسوع مسیح متی رسول سے کہتے ہیں کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس دن اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہو، اتنی زیادہ رقم اس کے پاس آئی ہو کہ وہ بڑا خوش ہو، وہ بڑا شادمان ہو رہا ہو، اس کے اندر دلیری آ رہی ہو، اس کے اندر خوشی آ رہی ہو کہ آج جتنا پیسہ میں نے اکٹھا کیا ہے اتنا پیسہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا، آج جتنی دولت ٹیکس کی میں نے اکٹھی کی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی اکٹھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کسی شاگرد کو چننے کے لیے گیا، اس کو خدمت کے لیے ابھارنے کے لیے گیا، تو اس شاگرد کے ساتھ اسی کے شعبے، اسی کے کاروبار کے اندر ایسی بڑھوتری آئی ہے کہ وہ حیران رہ گیا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ متی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ اتنے پیسے اکٹھے کر چکا ہوگا، اس کی اتنی لمبی چوڑی دیہڑی لگی ہوگی، اتنا پیسہ آیا ہوگا کہ وہ شادمان ہو چکا۔ اس نے کہا لو جی اب تو میں سیٹ ہو گیا ہوں، میرے اتنے پیسے آ رہے ہیں، ٹیکس کے پیسے آ رہے ہیں، انکم ٹیکس آ رہا ہے، میں تو اتنے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اب میرا کاروبار بڑھ رہا ہے، اب میری نوکری جو ہے وہ ترقی کے اوپر ہے۔ اسی ترقی کے عین موقع پر یسوع مسیح آ کر کہتے ہیں متی تو میرے پیچھے چل۔ اور اس شخص کے دل کے اندر کیسی بات آئی ہوگی کہ میں نے تو اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، میرے پاس تو پیسہ زیادہ بن رہا تھا، آج تو زیادہ ڈبل دولت آ رہی تھی، پہلے جب میں ساری دن میں 50,000 اکٹھا کرتا تھا، آج تو 12 بجے 1 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ دے، میرے پیچھے چل۔ اور پترس کو دیکھیں، وہ مچھوارا تھا، اتنی محنت مشقت کر رہا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ کشتی کے اندر، سمندر کے اندر بڑی زیادہ محنت کر رہا تھا، بڑی مشقت کر رہا تھا، اور تھک ہار کر جب کنارے پر آتا ہے، جال دھو رہا ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں اب میرے کہنے پر کشتیوں کو گہرے میں لے چل اور جا کر جہاں پر میں کہتا ہوں وہاں پر جال ڈال۔
और वो यीशु मसीह की बात मानकर ऐसे ही करता है, अपनी कश्तियों को ले चलते हैं, गहरे में ले जाकर वहां पर जाकर जाल डालते हैं। तो पहले कहता है यीशु मसीह हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ा खून पसीना बहाया, रात भर हम जाल डालते रहे हैं, यही समुंदर था, यही कश्तियां थी, यही जाल था, यही लोग थे, कुछ नहीं हाथ आया। यीशु मसीह कहते हैं अब मेरे कहने पर चलो। वो चल पड़ा, जाल डाले गए हैं और लिखा है कि इतनी मछलियां आ गई हैं, इतनी मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, जितनी कश्तियां थी सारी भर गई हैं, इतनी कश्तियां भर गई हैं कि कश्तियां डूबना शुरू हो गई हैं, इतनी तादाद में मछलियां आ गई हैं। अब पतरस सोच रहा होगा वाह जी वाह, अब तो मेरा काम बन गया, मेरा कारोबार चमक उठा। अब से लेकर यीशु मसीह ने कह दिया, यीशु मसीह आ गया, मेरी कश्तियां भरनी शुरू हो गई हैं, मेरे जाल भरने शुरू हो गए हैं, मेरे भाइयों की कश्तियां भी भरनी शुरू हो गई हैं, अब मेरा कारोबार डबल हो गया, अब मैं जल्दी अमीर हो जाऊं। शायद ये बातें सोच ही रहा था, शायद ये बातें उसके ख्याल में आ ही रही थी कि ऐन उसी वक्त पर यीशु मसीह कहते हैं तो ये सारा कुछ छोड़ो मेरे पीछे आ। तो यीशु मसीह कलाम अक़दस में से यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम क्या करो, तुम जाकर अंजील मुक़द्दस की बशारत दो, अंजील मुक़द्दस को लोगों के अंदर सुनाओ और इसकी मनादी करो। अब नामे बाब के अंदर देखते हैं, नामे बाब के अंदर ये बातचीत है। बहुत सारे शिगिर्द कहते हैं यीशु मसीह मैं तेरे पीछे तो आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मैं तेरे पीछे तो चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तेरे पीछे तो आना चाहता हूँ, मेरी दुकानदारी खराब होने वाली है, मैं पीछे तो चलना चाहता हूँ, तेरे साथ जो आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने घर का इंतजाम करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ तो चलना चाहता हूँ, मनादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं जाकर अपने किसी सगे को, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, जो मेरी चाचा का फूफी का बेटा जो भी है वो फोत हो चुका है, मैं उसको दफन करके आना चाहता हूँ, मैं उसको कफन दफन का इंतजाम करके आना चाहता हूँ। हर तरह से हर किसी ने अपना अपना उज़र सुनाया, हर कोई कह रहा मैं ये करना चाहता हूँ, पहले मैं ये करना चाहता हूँ, पहले मैं वो करना चाहता हूँ। ये बड़ी लंबी चौड़ी टॉकिंग हुई है। उसी टॉकिंग के अंदर एक बंदा कहता है यीशु मसीह मैं तेरे पीछे तो आना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? तो आज मेरे चीजों, जब हमें खिदमत के लिए खुदा बुला लेता है तो हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे ज़हन के अंदर, हमारी सोचों के अंदर सबसे पहले यही दुनिया की बातें उमड़ आती हैं और हम सोचना शुरू हो जाते हैं खिदमत तो मैं करूंगा, काम तो मैं यीशु मसीह का करूंगा, अंजील तो सुनाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या आशा होगा, मुझे क्या रुतबा मिलेगा, मुझे बनाया क्या जाएगा, मुझे कौन सा चर्च दिया जाएगा, मुझे कौन सी कलीसिया दी जाएगी, मुझे कितने गांव मिलेंगे खिदमत के लिए, मुझे 50 गांव दिए जाएंगे या मुझे 25 दिए जाएंगे, या मेरे हिस्से में इतनी फैमिली आएंगी, मैं इतनी मनादी करूंगा, इतने गाँव के अंदर जाऊंगा, बनी बनाई मुझे यीशु मसीह मिलेगा क्या? मैं काम तो करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कोई कह रहा है मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं अपने घर का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं ये दफना हूँ, मैं ये दुकानदारी सीधी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चीज़ों कलाम अक़दस इस बात का गवाह कि यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे से ज़्यादा दुनियादारी को अजीज रखता वो मेरे लायक हरगिज़ नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं कि पास तुम जाओ। अब जाने के ताल्लुक से वहाँ पर शिगिर्द कह रहे हैं मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मेरा वो मसला है। मेरे चीज़ों कुछ लोग यीशु मसीह के साथ ऐसे भी थे, उन्होंने अपने बहाने सुना दिए हैं। पहले कह रहे हैं कि यीशु मसीह हम तेरे साथ हैं, हम तेरे कलाम को सुन रहे हैं, हम मनादी करना चाहते हैं, ये बात है वो बात है। तो फिर जब अपने अपने मसले सुना रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर हम छोड़ भी देते हैं अपने घर को, अपने कारोबार को छोड़ भी देते हैं, मछली पकड़ना छोड़ देते हैं, अपनी मसूल की चुंगी छोड़ देते हैं, हम ये छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, तू हमें देगा क्या? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे वो रुतबा दूंगा जो दुनिया में तुझे कोई नहीं दे सकता। तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, मैं तुझे हमेशा की बादशाही का वारिस बनाऊंगा, मैं तुझे अपनी चरवाहा बनाऊंगा, और मैं अब से तुझे मछलियां पकड़ने वाला नहीं बल्कि माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनाऊंगा। मेरे चीजों कलाम अक़दस में यीशु मसीह ये हुक्म इलाही बयान करते हैं कि बस तुम जाओ
اور جانے کے ساتھ ہی ہماری زندگی کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر بڑے بڑے مسئلے, بڑی بڑی چیزیں پیدا کی. اب میرے عزیزو, یسوع مسیح نے وہاں پر ان لوگوں کو خدمت کے معاملے میں, جانے کے معاملے میں, انجیل سنانے کے معاملے میں کوئی رعایت پیش نہیں کی, کوئی رعایت نہیں دی گئی, کوئی ان کے لیے کوئی مناسب تھوڑا سا ہلکا سا انتظام نہیں کیا گیا کہ تیرے لیے یہ لچک ہے, تو ایسا کر لیا کر, تو ایسا کر لیا کر. کوئی رعایت نہیں ملی ہے. یسوع مسیح نے ان کو کہا, واضح طور پر کہہ دیا کہ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے, جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, جو کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے, وہ دنیا داری کو عزیز نہ رکھے. اور یسوع مسیح کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا, وہاں پر یسوع مسیح نے واضح کر دیا تھا, رعایت نہیں دی, واضح کر دیا. وہاں پر یہ نہیں کیا کہ اگر تم 10 بجے دعا کے لیے جمع ہوتے ہو تو ایسا کر لیا کرو کہ تھوڑی سی لچک لے لو, تم جس کے گھر میں زیادہ مسئلہ ہے اس کے گھر میں جمع ہو جا کر. تو یسوع مسیح نے وہاں پر رعایت نہیں دی, واضح کر دیا کہ جو میرے ساتھ چلے گا, جو میرے پیچھے چلے گا, جو میرا کام کرے گا, جو میں نے حکم کیے ہیں ان پر ان کو چلنا پڑے گا. یسوع مسیح نے یہاں پر کہا, جن کا میں نے تم کو حکم دیا ان پر عمل کرو, ان سب باتوں پر, ان سب حکموں پر عمل کرو جن کا میں نے تم کو حکم دیا. ان پر چلنا پڑے گا, ان پر چلنا, ان پر عمل کرنا, ان حکموں کو چلانا تمہاری اسٹریٹجی ہو جائے گی, تمہارا کام ہو جائے گا. رعایت نہیں ملی. بعض دفعہ میں نے سنا ہے ایسی کلیسیاں, ایسے ڈینومینیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے خادم اپنی کلیسیا سے کہہ رہے ہیں, اچھا ایسا کیا کرو, کوئی گل نہیں, گوشت آئیے نا تے 2 آیت بانی پڑھ کے تو گوشت کھا لیں. رعایت دے رہے, رعایت پیش کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے رعایت نہیں دی. یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ جن کا میں نے تم کو حکم دیا ان باتوں کو ماننا پڑے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم چل پڑے ہو, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم سیدھے ہو گئے ہو میرے ساتھ, تم نے عہد کر لیا تو پھر جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا. یسوع مسیح نے اپنے احکامات کو جاری کیا, رعایت پیش نہیں کی, اپنے حکم جاری کیے ہیں, رعایت پیش نہیں کی, اپنے باتیں بیان کی ہیں کہ تم کو ایسا کرنا ہے, تم کو ایسے چلنا ہے, تم کو ایسے بیان کرنا ہے. تم نے کسی کی رعایت نہیں کرنی. یہاں تک کہ یسوع مسیح نے کہا, باہر یہودا اسکریوتی آ گیا, شاید جس طرح بھائی ایلیا باہر دروازے کی رکھوالی کر رہا ہے, اسی طرح یہودا اسکریوتی باہر بیٹھا ہو, باقی لوگ کلام سنے ہیں, اندر آ کے کہتا ہے یسوع مسیح باہر تیری ماں اور تیرے بھائی آ گئے. یسوع مسیح کہتے ہیں کوئی رعایت نہیں, میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں, ان کے لیے کوئی رعایت نہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ کرنی پڑے گی, رعایت نہیں مل رہی. یہاں پر انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں, حکم جاری کیے ہیں, بس تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اور تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اب جب یسوع مسیح شاگردوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نکلنا پڑے گا, تمہیں جانا پڑے گا, اب سیدھا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم کو وہ اپنی کامیابیوں کی, آسانیوں کی وہ جگہ جن کو تم اپنی آسانی کا باعث سمجھتے ہو, جن کو اپنی برکت کا باعث سمجھتے ہو, جن کا سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا کاروبار ہے, یہ میری چیزیں ہیں, یہ میرا گھر ہے, یہ میرے خاندان ہے, یہ میری جائیداد ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان سب ضروری چیزوں کو تمہیں میرے لیے چھوڑنا پڑے گا. امیر شخص آیا, اس نے کہا میں نجات پانا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری دولت غریبوں کے اندر بانٹ, پھر تو نجات پا سکتا. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. اس نے سوچا میں اپنی دولت دے دوں, اپنی جائیداد دے دوں, اپنا سارا کچھ دے دوں. یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی, وہ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر سیدھا مطلب ہے کہ نجات نہیں مل سکتا. تو یسوع مسیح جب ان کو یہ بتا رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ان جگہوں کو جن کو ہم اپنی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں ان جگہوں کو چھوڑنا پڑے گا. پترس کے ساتھ, متی کے ساتھ ایسا ہوا, لوکا کے ساتھ ایسا ہی ہوا. لوکا میڈیکل کا ایک ماہر آدمی تھا, اس کا شعبہ میڈیکل تھا, وہ ایک حکیم یا ڈاکٹر یا طبیب کی ایک اس کے پاس فیسلٹی تھی. اب بہت سارے مریض اس کے ہوں گے, بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے, بہت سارے مریض اس کے پاس, اس کا ہاسپٹل, اس کا دواخانہ, اس کا طب, اس کی جگہ وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی, بڑا وہ پیسہ کما رہا ہوگا.
जब यीशु मसीह ने कॉल किया तो वो सीधा उठकर चल पड़ा। मत्ती बड़े पैसे कमा रहा था, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, वो चल पड़ा। पतरस, उसका कारोबार था मछलियां पकड़ना, कश्तियां उसकी अपनी थी, कारोबार था, बेचता था, वो चल पड़ा। तो जो जगह हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है दुनिया में, यीशु मसीह कहेगा कि उसी को, अब्राहम को शायद अपना ख़ानदान बड़ा ज़रूरी था, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप उसको बड़े प्यारे थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता था। खुदा ने कहा कि यही तेरी ठोकर का बायस है, यही तेरे लिए ठोकर का बायस है, यही तेरे रास्ते में रुकावट है, इनको मेरे लिए छोड़, और जहाँ पर मैं कहता हूँ वहाँ पर जाकर तू मेरे लिए काम कर। तो उसने छोड़ दिया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं पहले मैं अपने भाई से माफ़ी मांग लूँ, मैं अपने भाई को कैसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे उसको कहूँगा कि नहीं मैं लौट आऊँगा मैं इतने सालों के बाद। उसने कहा जो खुदा ने कह दिया वो आमीन। तो मेरे चीज़ों कलाम अक़दस के अंदर हम देखते हैं, अमाल के किताब के 5वें बाब के अंदर फिलिप्पस को खुदा कह रहा है, रूह के अंदर कह रहा है कि तू फलां फलां बियाबान के अंदर जा, वहाँ पर एक बंदा तुझे मिलेगा जो सफ़र कर रहा है, जो अंजील मुक़द्दस को, कलाम अक़दस को पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं है, उसको अकल नहीं है कि जो पढ़ रहा है वो क्या है, हकीकत उसकी क्या, वो नहीं जान पा रहा। तू क्या कर, वहाँ पर पहुँच, मैं तुझे भेजता हूँ, वहाँ पर जा और उसे जाकर सारी हकीकत के बारे में आगाह कर। तो वो खुदा की बात सुनने के बाद उस सफ़र को मजे से बसर कर रहा है, उस सफर को गुजारते हुए लुत्फ अंदोज हो रहा है, मजा ले रहा है उस सफर का। वजह क्या है कि वो अपनी मर्जी के साथ हो किसी ख्वाजा के पास नहीं जा रहा, वो अपनी मर्जी की वजह से नहीं जा रहा, उसको खुदा भेज रहा है। रूहुल कुद्दस की कॉल है कि तू वहां पर जा और उसको उस हकीकत के बारे में आगाह कर। तो वो रूहुल कुद्दस की आगाही के बाद, खुदा के हुक्म के बाद, उस हुक्म का मजा लेते हुए, सफर करते हुए उसके पास पहुंच गया और जाकर कहता है कि ये हकीकत। तो वो मजे के साथ जा रहा है, लुत्फ अंदोज होकर जा रहा है और खुशी के साथ जा रहा है कि खुदा ने मुझे भेजा। यूना ने ऐसा नहीं किया। यूना कहता है खुदा मुझे नैनवा के अंदर भेजना चाहता है, वो तो मुझे मारेंगे, वो तो मुझे पकड़ेंगे, वो मुझे संसार कर देंगे, मुझे जलील करेंगे, मेरे कपड़े फाड़ेंगे, मुझे थप्पड़ मारेंगे। उसने ऐसा सोचा, उसके दिल में ख्याल आया, उसने अपना रास्ता बदला। तो रास्ता बदल कर क्या वो खुदा के हुक्म से बच पाया, खुदा की हज़ूरी से बच पाया? जो खुदा ने उसके साथ अहद किया था क्या वो उससे जुटला सके? क्या वो उससे दूर हो चुका है? वहीं पर आ गया, वहीं पड़ा है, वहीं जाना पड़ा, वहीं मनादी करनी पड़ी, वहीं कलाम सुनाना पड़ा, वहाँ जाकर ज़िंदगियों के अंदर कलाम सुनाकर उनको तौबा के लिए कायल करना पड़ा, वहाँ जाकर उनको तौबा के लिए आगाह करना पड़ा, वहाँ पर जाकर कायल करना पड़ा कि हकीकत के अंदर तुम इस तरह से चल रहे हो, कलाम ये कहता है, खुदा कहता है, तौबा कर लो, अपने आप को बदलो, वहीं पर जाना पड़ा। तो यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से कहते हैं बस तुम जाओ और सारी खलक के सामने अंजील मुक़द्दस की मनादी करो। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम सोचते हैं कि हम जब हमें खुदा ने खिदमत के लिए चुना हुआ है, जब हमें खुदा अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि जब हम कॉल के लिए उठ खड़े हुए हैं, यीशु मसीह ने हमें कॉल की है, उसने अपनी खिदमत के लिए उभारा है, खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो हम जाएंगे, हम जाकर मनादी करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, हम उस इलाके के अंदर जाएंगे, हम उस इलाके के अंदर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, अपनी गवाही पेश करता हूँ। भाई आसफ इस मामले को जानते हैं। मैं जब जवानी के अंदर था तो मुझे एक ही बात का जुनून हुआ करता था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और इसके अंदर इतना बड़ा नाम पैदा करना है कि दुनिया मुझे जाने। और उस दौर के अंदर, आज से 18-20 साल पहले, जब 100 रुपये की भी इतनी बड़ी कीमत होती थी, इतनी कदर होती थी, उस वक़्त के अंदर मैंने 14,000 रुपया लगाकर अपना सामान क्रिकेट का अलग बनाया हुआ था, बैग बनाया हुआ था। और मुझे इतना जुनून था कि सारा दिन, सारी रात, और बाद दफ़ा ऐसा था 2-2 दिन मैं दूसरे शहरों में क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ही रहता था। और मुझे इतना जुनून होता था, मैं इतना मोह हो चुका था, और वहाँ पर भी खुदा ने इतना नाम दिया, इतना मकाम दिया कि वहाँ पर भी लोग जानते थे और कहते थे कि फलां टीम के अंदर कोई बंदा है और वो ये काम करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। हर साल हमारी टीम एक सेरेमनी करती थी, खाना बनता था, एक पार्टी होती थी, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी उनको इनाम दिए जाते थे,
ट्रॉफियाँ दी जाती थी, उसकी खिदमात को सराहा जाता था, उसको अप्रिशिएट किया जाता था। और खुदा के फजल से अंजील मुक़द्दस को सामने रख कर ये बात कहता हूँ, हर साल खुदा उस लिस्ट में मेरा नाम टॉप पर रखता था और इस लिस्ट में से हर दफ़ा मुझे नाम मिलता। वहाँ पर जब इतना बड़ा नाम खुदा ने दे दिया, आज भी भाई अनूस भी जानते हैं, भाई अनूस की बड़ी टीम जो हमारी ए टीम हुआ करती थी, वो कहती थी कि तुम हमारी टीम में आकर खेलो, तुम्हारी जगह ये नहीं है, ये है। तो मैं समझता हूँ कि तब मुझे इतना जुनून था, इतनी बड़ी बात थी, लेकिन मैं अपना नाम उस शोबे में इतना बढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलूं, वहाँ पर जाकर नाम पैदा करूं, लेकिन खुदा नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, बड़ा कुछ किया, बड़े पापड़ बेले, लेकिन नाम हुआ, सारे लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, लेकिन उस शोबे के अंदर खुदा ने मुझे कामयाब नहीं की। अब उसके बाद मैंने एक और ट्राई की कामयाब होने के लिए। मैंने कामयाब होने के लिए जब फैक्ट्री लाइन में पढ़ा तो मैंने देखा कि ये लोग बड़ी जायदाद के मालिक हैं, इनके पास अरबों की तादाद में पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कारोबार दिया है। तो मुझे खुदा ने जहन में डाला, मैंने फिर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, अपने नाम पर एक फर्म करवाई, फैक्ट्री एक रजिस्टर्ड करवाई, मैंने कारोबार करना शुरू किया। फिर भाई आसू को साथ शामिल किया, भाई नदीम को साथ शामिल किया। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, मैं 4-4 बजे तक जागता था और लोगों से बात करने के लिए, ग्राहकों से ईमेल पे बात करने के लिए, उनसे काम लेने के लिए बड़ी मेहनत मशक्क़त की। रात भर जागता और फिर सुबह काम के लिए चला जाता। बड़ी मेहनत मशक्क़त किया, भाई आसफ ने मेरे साथ मेहनत किया, भाई नदीम ने मेहनत किया, लेकिन उस शोबे में भी मैं कामयाब नहीं हुआ। वजह क्या थी? वो मेरे ज़हन की बात थी। मैं उन शोबों में कामयाब होना चाहता था, नाम पैदा करना चाहता था, मैं उन शोबों के अंदर जाना था, तो मेरी मर्जी थी। लेकिन दर हकीकत वो खुदा की मर्जी नहीं थी। खुदा की मर्जी ये थी कि अंजील मुक़द्दस मेरे हाथ में हो, वो बैग मुझसे छूट जाए, वो कंपनी की सारी बातें छूट जाए, अंजील मुक़द्दस मेरे हाथ में। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मुझे अब दुख नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है कि उन शोबों के अंदर मुझे खुदा ने कामयाब नहीं किया। मैं खुश हूँ, दिलेर उस बात में कि जिस शोबे में खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, आज मैं कामयाब। तो मेरे चीज़ों यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जाओ और अंजील की मनादी करो। अब जब जाने की बात होती है तो हम मुश्किल समझते हैं कि हमारी तो वाकफियत ही नहीं है, फलां गाँव में जाना है, वहाँ पर तो हमें जानते ही क्यों नहीं, हम कैसे मनादी करेंगे। चिचर वाली के अंदर जाना, हमें तो वहाँ पर जानता ही क्यों नहीं, कैसे मनादी करेंगे। हम मुख्तलिफ ख्याल मानते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों ये ज़रूरी नहीं है कि हम खिदमत के लिए खड़े हुए हैं तो हम फ़लाँ इलाके में ही जाकर खिदमत करेंगे, फ़लाँ शहर में ही जाकर खिदमत करेंगे, फ़लाँ गांव के अंदर ही जाकर खिदमत करेंगे। खुदाम यीशु मसीह इसकी कोई पाबंदी नहीं लगाता। यीशु मसीह कहता तुमने जाना है, निकलना है, खा वो मनादी की जगह तुम्हारे घर का अगला घर क्यों नहीं है, वो मनादी की जगह तुम्हारी घर की अगली गली क्यों नहीं है, वो मनादी की जगह तुम्हारे घर का दूसरा मोहल्ला क्यों नहीं है, वो मनादी की जगह तुम्हारे गांव का दूसरा कोना क्यों नहीं है, वो मनादी की जगह तुम्हारा अपना घर क्यों नहीं है, वो मनादी की जगह दुनिया में कोई भी कोना है, दुनिया का कोई भी मुल्क है। निकलना है, जाना है, यीशु मसीह को बात को फॉलो करना है, यीशु मसीह के हुक्म को फॉलो करना है। जो उसने कह दिया कि पास तुम जाओ, निकलो, तो उसके पास उसकी मर्जी है कि वो आपको अपने गाँव में इस्तेमाल करता है, आपको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता है, आपको अपनी गली के अंदर इस्तेमाल करता है, या दूसरे कोनों के अंदर, अमेरिका के अंदर ले जाता है। ये उसकी मर्जी है। हमारा काम है कि हमने जाना है, निकलना है, और यीशु मसीह की बात पर अमल करते हुए हमने अंजील की मनादी शुरू करनी है। शुरू करना हमारे पास में, शुरू करना हमारे हाथ में है। तो हम बड़ी देर से ये बातें कर रहे हैं, हम बड़ी देर ये सोच रहे हैं, बहनें भी सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं, निकल नहीं रहे, सोच नहीं। हम सोचते हैं कि शायद हमें सियालकोट के अंदर खुदा ले जाकर मनादी इस्तेमाल करेगा। मुझे बहनें सोचते हैं कि शायद मैं अपने पिछले गांव में जाऊंगी तो वहाँ पर मेरे मुंह से कोई बात निकलेगी, मैं मनादी करूँगी। लेकिन निकलना पड़ेगा, खुदा की बात को, यीशु मसीह की बात को फॉलो करने का पड़ेगा। शायद खुदा आपको आपकी गली के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहता है, शायद खुदा इंजील के लिए आपको अपने इलाके के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी अगली गली के अंदर, अगले घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है। निकलने की कॉल को इस्तेमाल करें, निकलने की कॉल पर ध्यान लगाएं, जाने की बात पर गौर करें। यीशु मसीह जाने के बारे में कहता है, ये नहीं कहता है कि तुम्हारे लिए इलाके फिक्स हो जाएंगे। आज डिनोमिनेशन ऐसी करती है, जैसे मैंने पहले कहा, लो जी मुंडे की आपका सेंटर है और आपके सेंटर में इतने गाँव हैं, इतने चर्च हैं, ये आपका इलाका है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया।
लो जी, सियालकोट आपका सेंटर है, वो आपका मेन चर्च है, और आपके इलाके के अंदर 12 चर्च हैं और 48 गांव हैं, ये आपका इलाका है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आज लोग अंजील की मनादी कम कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी मशहूरी ज़्यादा कर रहे हैं। लो जी, ए मेरा सेंटर जे इत्थे मेरे इन्ने चर्च दे मेरे अंडर च इन्ने खादम ने, ए 15 पिंड मेरे अंडर च होंदे ने, मेरे चर्च तुसीं भी आ गए, ये मनादी हो। लो जी, मैं नारोवाल दे विच मेरा सेंटर है ते 52 पिंड मेरे इलाके च होंदे ने, ते मैं सारे च मनादी करना, इन्ने खादम मेरे अंडर काम करते हैं, तुसी मेरे चर्च। यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने। नारोवाल के अंदर नहीं आपने जाना, गांव दूसरे के अंदर, जहां पर खुदा की कॉल है आपने निकलना है। सबसे पहली जो बात है, सबसे ज़रूरी जो बात है, सबसे पहली जो कॉल है, जब खुदा आपको उठा लेता है, खड़ा कर लेता है, कॉल कर लेता है, ज़रूरी बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा जाओ, निकलना है, और निकल कर यीशु मसीह की बात को फॉलो करना है सारी खलक के सामने। शायद वो मनादी की जगह आपका अपना ही गाँव, अपनी गली, अपना घर, अपना मोहल्ला है। तो बाल दफा बहुत सारे लोग इसी सोच के अंदर सारी उम्र गुजार देते हैं कि मैं पता नहीं कहां पर खिदमत करूंगा, पता नहीं किस इलाके में खुदा मुझे खिदमत के लिए जाएगा, पता नहीं किस गांव के अंदर जाऊंगा, पता नहीं किस इलाके के अंदर जाऊंगा। आज ज़्यादा लोगों की कोशिश हो गई है कि मैं मखसूस हो जाऊं, खादम बन जाऊं, फौरन ही अमेरिका का वीज़ा लग जाए। आज मैं खादम बना हूं, 6 महीने मैंने खिदमत की है, 7वें महीने मुझे कोई गोरा मिल जाए और कहे कि भाई इत्थे आई हुई अमेरिका से, इत्थे आके मना दी। ये असल में हम यीशु मसीह के अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे, उसकी अंजील को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपनी उन सोचों को फॉलो कर रहे हैं जो हमें लालच के अंदर धकेल रही हैं, जो हमें ये बताती हैं कि खिदमत असल में पैसों का ज़रिए मुबादला है, इसकी वजह से पैसे आते हैं, इसकी वजह से सक्सेस आती है, इसकी वजह से रुतबा आता है, इसकी वजह से कारें कोठियाँ मिलती हैं, इसकी वजह से अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री बड़ी मिल जाती है, इसकी वजह से टेलीविज़न बन जाता है, इसकी वजह से इज्जत ज़्यादा बन जाती है, इसकी वजह से बड़े बड़े खादमी आप टीवी पर आना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका घर अच्छा बन जाता है, कारें कोठियाँ मिल जाती हैं। आज लोगों ने खिदमत को ये बना समझा हुआ है। आज यीशु मसीह की बात को जो यीशु मसीह कहता है जाओ, इसको ये समझा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है जाओ कारें कोठियाँ बना लो, जाओ अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लो, जाओ ऐसे कर लो, जाओ ऐसे कर लो। दर हकीकत हमने ये समझा हुआ है, लेकिन खिदमत इससे कहीं दूर है। खिदमत का मतलब है खिदमत करना। अब लोग क्या कर रहे हैं, खिदमत को वर्क करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी पट्टियाँ चल रही हैं। लो जी, ये इजी पैसे का नंबर है, ये जैश कैश का है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये स्विस अकाउंट है, ये है। वजह क्या हो रही है, मनादी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर, बैठे हम अमेरिका के अंदर। मेरे जीजो, मैं ये मत समझे कि मैं किसी के खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं असल में हकीकत से पर्दा उठा रहा हूँ। होता ये है, यीशु मसीह कहता है कि मनादी करो, हम कर रहे हैं, अपने आप को वेल सेट कर रहे हैं। खुदा बरकत दे दे, खुदा चला दे, खुदा वेल सेट कर दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन अगर हम जिस जगह पर खुदा ने हमें खड़ा किया है, जिस जगह पर कॉल किया है, जिस जगह पर, जिस इलाके में खिदमत के लिए खड़ा किया है, उस इलाके के अंदर दयानतदारी वफादारी से खिदमत नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था पहले शुरू में, पता नहीं मैं किस इलाके में जाकर खिदमत करूंगा, पता नहीं कौन से कितने गाँव मुझे देगा खुदा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। और फिर उसी मौके पर जब मैं ये बातें सोच रहा था, जब मुझे स्टार्ट में खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो खुदा ने कहा कि ना तो मैं तुझे किसी दूसरे शहर के अंदर ले जाऊंगा, ना तुझे मैं अमेरिका के अंदर ले जाऊंगा, ना तुझे इतने इलाकों पे, मैं दर हकीकत तुझे इसी इलाके के अंदर इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और ये नहीं कहा कि मैं तुझे इतने 42 गाँव दूंगा, 52 गाँव दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे जिंदगियां दूंगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा की वो बात पूरी हुई है, खुदा ने जिंदगियां दी। तो मैं इसी बात पर फोकस करता हूँ, इसी बात पर ईमान रखता हूँ, इसी पर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। जो खुदा ने कहा कि पास तुम जाओ, निकलो और देखो कि कहाँ पर जरूरत है, मनादी की जरूरत को देखना। आज क्या करते हैं खादम, क्या करते हैं, जो चर्च का सबसे अमीर मेंबर होता है, जो अच्छा मेंबर, जो ज़्यादा हदिया देता है, उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आओ जी जो साहब, आप इधर बैठे हैं, इधर आपकी सीट है। वजह क्या है, वो 2 लाख रुपया हदिया दे रहा है, जाइए कि दे रहा है चर्च को, ये वजह।
एक बंदा महीने के बाद 1000 रुपये दिहाड़ी की चर्च को दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और ये रहा है, असल ये खिदमत हो रही है। जो बंदा हफ्ते के बाद कहता है भाई साहब ये देख लें, यहाँ पर तो चर्च के अंदर तकसीम कर दें, कहना जवेद साहब नहीं, अगली दफा तुम्हें वो थे नाल बहना, अगे बहना। मेरे जीजो, दर हकीकत ये अंजील मुकद्दस नहीं है। खादम लोग, चरवाहे आज उन्हीं लोगों की कदर कर रहे हैं जिनके घरों से ज्यादा हदिया आ रहा है, जिनके घरों से ज्यादा दयायकियां आ रही हैं। ये अंजील मुकद्दस नहीं है, ये अहकामात नहीं है, ये यीशु मसीह की अंजील नहीं है। यीशु मसीह ये कहते हैं कि इस बुरी औरत ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि ये सबसे कम डाल रही है, वो दिल से डाल रही है। तो मेरे जीजो, यीशु मसीह की अंजील है कि जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। बाद लोग तो जो गरीब गुरबा गा रहे हैं, जिनके घर की हालत कोई कंडीशन इतनी खास नहीं है, उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते। और नहीं मैंने सियालकोट में जाना है, वहाँ पर इतनी फैमिली है, वो मुझे कॉल कर रही हैं, आपका फिर देखें, मैंने वहाँ पर जाना है। देखेंगे भाई जब आप बैठे, कोई मसला नहीं, फिर आप देखें। असल में हमें आज सोचने और पहचानने की ज़रूरत है कि अंजील मुकद्दस और यीशु मसीह क्या कर रहा है और हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। तो अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ये फरमाते हैं, बस तुम जाओ और अंजील मुकद्दस की मनादी करो। अब कोई ना सोचे, कोई बहन, कोई भाई ये ना सोचे कि शायद मुझे भेजा जाएगा, शायद मुझे कहा जाएगा तो फिर मैं निकलूँगा। आपके घर के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपके अगले घर के अंदर खुदा ने आपके लिए खिदमत का दरवाज़ा खोला हुआ है, आप वहाँ पर जाएं। बाद लोग सोचें ना हम वाकफ़कार नहीं, हम सोचने मुझे जानते नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे जीजो, यहाँ से निकलना शुरू करें, यहाँ से मनादी करना शुरू करें। आज वो वक्त आ पहुँचा है। मैं आपसे कहता हूँ बहनों से, भाइयों से, आपको ये वो हुक्म दे रहा है, आज के बाद आपकी ड्यूटी बन चुकी है। निकलना शुरू करें, अपने मुंह से कलाम निकालना शुरू करें, लोगों को गाइड करना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें। ये काल आज हम सब के लिए खुदा दे रहा है कि जाओ तुम सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। अगर हम पटियाला के अंदर ही मनादी शुरू कर देना सैलरी, तो मैं ही मान रखता हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़रूरत है कलाम की, इतनी तौबा की ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि हम सब 24 घंटे भी काम करें तो खिदमत खत्म नहीं हो सकती। तो मेरे जीजो, ये जो काल है यीशु मसीह की, ये जो बात है कि तुम जाओ, और इस जाने के पहचान को हमने अपने जहनों के अंदर उभारना है, सोचना है, ख्याल करना है कि क्यों हमें यीशु मसीह। बहुत दफ़ा हमने ये कलाम सुना है, बहुत दफ़ा अपने इस कलाम को सुना, पढ़ा, जाना है। यीशु मसीह कहते हैं जाओ, लेकिन उस जाने के मुकाशफे को हम नहीं जानते थे। लेकिन खुदा के रूह की शुक्रगुजारी है कि वो मुकाशफा आज हमारे ऊपर ज़ाहिर हो गया कि असल में जाना हकीकत में है क्या। आमीन आमीन। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदा की हुजूरी के अंदर आज के